Hello students, welcome back. Today I am going to start next chapter of rotational motion. In this chapter we will study about rotational motion. Earlier I taught you about concept of center of mass. Now in this part I will teach you about the rotational motion of rigid body. Now first of all, what is torque? Whenever force is applied on an object, the force may produce translational motion, it may produce rotational motion, and it may change shape of a body. When you apply force on a football, you kick it, it follows translatory path. When you sit on a football, it is deformed. No motion is produced, but the force which you are applying is uh, changing the shape of football. Now, force can also produce rotational motion. For example, you apply force on door handle to open it or close it. So it produces rotational motion. Another example, you apply force on steering wheel of automobile to guide it around a curve. So what is torque? Torque is the measure of the turning effect produced by the force. कि वो फोर्स उस बॉडी में कितना घुमाव या टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क. मैथमेटिकली टॉर्क इट इज डिनोटेड बाय टाउ. दिस इज टाउ. मैथमेटिकली टॉर्क और टाउ is equal to magnitude of force multiplied by perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. This is coordinate system. ये origin है. Now ये जो line है perpendicular to the page, it is z axis. सो ये एक पार्टिकल है. इट कैन मूव ऑन सर्कुलर पाथ ऑन दिस पेज. ये फोर्स लगाई इसके ऊपर एंड दिस पार्टिकल पी इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ऑन द पेज. अगर पेज में ये घूमता है पार्टिकल, देन ये पेन विच इज जेड एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द पेज है, इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. यू होल्ड योर पेन एट पॉइंट ओ परपेंडिकुलर टू द पेज. इट इज जेड एक्सिस और इसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस पार्टिकल. Now this is the force applied on this particle P. इसका mass m है. This solid circle is representing a particle. इस force का जो arrow है आप इसको produce कीजिए इस तरफ और पीछे. इस line को ये line, this is called line of action of force. इस लाइन के ऊपर यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारी ओ से पास कर रही है और परपेंडिकुलर पेज है. तो ओ एम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स multiplied by this perpendicular distance OM and let it be R perpendicular. ना 2 सेंटीमीटर ना 4 सेंटीमीटर, let it be R perpendicular centimeter. So it is torque. Now if you look carefully, this is the position vector of this particle. You produce it forward. तो आर वेक्टर को अगर आप यहाँ से उठा के इधर ले जाएं तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है. यू कैन से थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. और इन अदर वर्ड
theta is angle between r vector and f vector. So in this triangle OMP, this is base, this is perpendicular and a hypotenuse. So in this triangle, base means this is perpendicular, OM upon OP, this is sin theta, OM is OP sin theta. So OM is R perpendicular, this is R, so ये वैल्यू आ गई हमारी R perpendicular की. So this is the value of R perpendicular. Now you also know this can be rewritten tau is equal to R vector cross F vector, और मैग्नीट्यूड लेना तो फिर से टाउ इज इक्वल टू R F sin थीटा. सो ये दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है और R F sin थीटा है, तो टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. नाउ वी कैन ऑल्सो राइट टॉर्क इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. नाउ लुक हियर, ये हमारा पार्टिकल यहाँ पे, इसके ऊपर फोर्स लगाई इस तरफ F. This is the direction of force acting on the particle and position vector of this particle is R. और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घूम रहा है. तो ये जो जेड एक्सिस है इसकी, ये यहाँ परपेंडिकुलर टू पेज एंड पासिंग थ्रू O, इट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ दिस इज फोर्स, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर. ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन फ्रॉम हेड ऑफ F वेक्टर, ये और एक ये. तो ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बट इट इज़ नॉट एक्स कंपोनेंट. इसकी डायरेक्शन जो R वेक्टर की डायरेक्शन है वो है, तो इसको बोलेंगे हम F सबस्क्रिप्ट R, और इट इज़ कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज इट इज़ अलोंग रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो रेडियल कंपोनेंट है. And this is called F theta. It is transverse component of force. We also call it F transverse या F perpendicular या F theta. क्योंकि जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर जाएगा तो ये एंगल जो है ये बढ़ेगा, जैसे पार्टिकल यहाँ इधर घूमेगा. So this is called ट्रांसवर्स कंपोनेंट. इफ़ यू लुक केयरफुली, ये फोर्स ले लीजिए या इसके दो कंपोनेंट F थीटा और F R. तो अगर मैं F फोर्स नहीं ले रहा हूँ जो पार्टिकल के ऊपर लग रही है, मैं लेता हूँ F थीटा और F R. तो ये F R तो इसको इधर खींच रहा है, तो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन. रोटेट, ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो पार्टिकल को इधर ले जा रहा है, दैट इज F थीटा. एंड दिस F थीटा विल बी इक्वल टू F sin थीटा. इस जिसके साथ एंगल बनता है इस तरफ तो होगा F R इज इक्वल टू F cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू F sin थीटा. सो वी नो टाउ इज इक्वल टू F R sin थीटा. यहाँ से वी नो टाउ इज इधर से टाउ इज F इंटू R परपेंडिकुलर इसके बराबर है. सो टाउ इज F R sin थीटा. इस R को बाद में लिख लीजिए और sin थीटा को F के साथ. व्हाट इज दिस? दिस इज F थीटा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स. तो इसकी जगह पे F थीटा लिखा जा सकता है इंटू R. So we can say F theta is transverse component of force, F R is radial component of force. So from here I can also define torque equal to product of radius and transverse component of force. Torque is also called moment of force. Torque का दूसरा नाम moment of force. इसके यूनिट यू कैन मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. इसका ऐसा यूनिट न्यूटन, इसका मीटर, न्यूटन मीटर जूल होता है और जूल ही वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है. CGS यूनिट इसका डाइन और इसका सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर इज अर्ग, तो सेम एज दैट ऑफ वर्क एंड एनर्जी.
डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला m1l1t-2 और r परपेंडिकुलर का l, सो इट इज m1l2 हो जाएगा, t-2 सेम एज ऑफ वर्क और एनर्जी. Now torque in component form. This is particle and r is its position vector. Let us say कि x, y, z are its component. तो हम जानते हैं कि अगर हमें x, y, z are its coordinates. अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता हों तो r वेक्टर कैन बी रिटन, r इसके बराबर हो. Similarly resolve this f into rectangular components. तो ये rectangular components हो गए इसके फोर्स के. Then tau is equal to r vector cross f vector. So tau is r vector cross f vector. ये हमारी r vector की वैल्यू है, ये हमारी f vector की वैल्यू है. तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना आता होगा, हमने पहले पढ़ लिया है. टाउ इज ऑल्सो वेक्टर, इसको भी हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा बाई एफ जेड. अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ये है आई कैप का कोफिशिएंट. आई कैप का कोफिशिएंट मीन्स ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. तो जब ये आई कैप का कोफिशिएंट है तो इसमें एक्स नहीं आएगा. तो x नहीं आएगा तो x के बाद आता है बाई और बाई के बाद आता है z. तो इसका आप x कंपोनेंट इसका बाई कंपोनेंट लेंगे और इसका z. तो इसका जो बाई कंपोनेंट है वो बाई और इसका एफ जेड माइनस, इनको उल्टा कर दो, ये z इधर और ये एफ वाई. जब हम j का कोफिशिएंट निकालेंगे तो j का कोफिशिएंट अलॉन्ग बाई एक्सिस हो तो इसमें बाई नहीं आएगा. बाई नहीं आएगा तो बाई के बाद आता है z. तो इसका z और इसका x कंपोनेंट, z के बाद x आता है. सो ये आ गया हमारा. सिमिलरली ये हमारा k का कोफिशिएंट है. k के कोफिशिएंट में हमारा क्या नहीं आएगा, k के कोफिशिएंट में ना तो z नहीं आएगा. z नहीं आएगा तो z के बाद x आता है और y आता है. तो ये x और जो दूसरा वेक्टर है उसका बाई कंपोनेंट माइनस उल्टा. Now you equate coefficients of I cap, J cap and K cap on both sides. Either tau x is the coefficient of I cap, either ये है coefficient of I cap. तो इनको इक्वल कर दीजिए. tau x is equal to इधर का coefficient ये आ गया. Similarly J cap का coefficient यहाँ tau y है और इधर ये है. So tau y is equal to this and coefficient of K cap ये आ गया. Now factors affecting torque. As I told you, torque is the measure of turning effect produced by a force. Now mathematically tau is equal to rf sin theta. Now if theta is 0 और 180 तो sin 0 भी 0 होता है और 180 का sin भी 0 होता है. So torque will be 0. ये this is a door. ये डोर की फ्रेम है, दिस इज़ फ्रेम ऑफ डोर. ये हिंजेस हैं और ये दरवाज़ा, ये वुडन प्लैंक, दिस इज़ वुडन प्लैंक. तो ये जो है हमारा जो वर्टिकल बार है जिसको हम फ्रेम कह रहे हैं, इसके साथ कब्जों के साथ दरवाज़ा लगाया गया होता है. तो दिस इज़ योर एक्सिस. तो इट इज़ वर्टिकल, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये दरवाज़ा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इसके चारों तरफ घूम सकता है. चारों तरफ तो नहीं, बट इट कैन बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री. तो ये वुडन प्लैंक का एज, ये वुडन प्लैंक का फ्री एज, ये दिस इज फ्री एज ऑफ वुडन प्लैंक और ये है हिंज्ड एज ऑफ वुडन प्लैंक जिस तरफ कब्जे लगे. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया हमारा आर वेक्टर, ये है पॉइंट, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं आप. अगर आप इस दरवाजे के एज को इस तरफ खींचोगे तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल 0 है. तो दरवाजे को पकड़ के अगर आप खींचेंगे अलोंग द एज, ये फोर्स इस दरवाजे के प्लेन के बिल्कुल पैरेलल लग रही है. तो इट विल नॉट रोटेट.
दरवाजे को घुमाना है तो ये यहाँ पे जैसे हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को पकड़ेंगे और इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। आप इस हैंडल को ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो घूमेगा। सो अगर ऐसे फोर्स लगाते हैं आप तो दिस फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द एक्सिस, तो ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर दे आर एंटी पैरेलल, इन दोनों के बीच में एंगल 180 है। सो अगेन इट विल नॉट रोटेट। टाउ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आर, आर अगर आप बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट फोर्स पैदा करेगी। जैसे दिस इज पाइप रेंच, यू माइट हैव सीन, जो प्लम्बर होते हैं उनके पास होता है, टैप्स वगैरह को खोलने वगैरह के काम आता है। तो ये ऐसा होता है, सपोज दिस इज़ अ नट, ये इसको आपने घुमाना है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप अपने इस पेज को टेबल पे जो रखा हुआ है, इस डॉट के ऊपर अपने पेन को परपेंडिकुलर रखिए पेज के, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इस नट की। आई रिपीट, जो हमारा ये डॉट है इसके ऊपर आप अपना पेन जो है उसको बिल्कुल वर्टिकली खड़ा कर दीजिए। So that pen will be axis of rotation of this nut. अगर आप ये दिस इज द आर्म ऑफ रेंच, अगर यहाँ फोर्स लगाते हो तो ये इससे डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे r1 डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हो, तो टॉर्क जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस, यू नो इट इज आर एफ साइन 90 क्यों है? बिकॉज ये फोर्स है और ये हमारा आर वेक्टर है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आर वेक्टर है हमारा और ये फोर्स वेक्टर है नीचे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90। सो अगर ये R1 है तो R1 सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर और जो फोर्स लगाई हमने 100 डाइन है, तो टॉर्क इज 500। तो अगर ये इतनी ही फोर्स जो कि 100 डाइन है, अगर मैं इस फोर्स को यहाँ लगाता हूँ, पहले यहाँ लगाई थी अब यहाँ लगाई, तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ गई, तो से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गई और फोर्स उतनी ही 100 डाइन लगाई, तो अब जो है हमारा टॉर्क 1000 डाइन सेंटीमीटर और यहाँ पे 500 डाइन सेंटीमीटर। सो टॉर्क बढ़ गया, जितनी ज़्यादा दूर फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा। सो वी कैन इंक्रीज टॉर्क बाय इंक्रीजिंग आर, देन टाउ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फोर्स। यहाँ फोर्स अगर आप 100 न्यूटन लगाते हो तो टॉर्क विल बी 500। अगर यहीं पे इसी जगह फोर्स ज़्यादा लगाते हो, 500 के बजाय या 100 के बजाय 200 लगाते हो, तो टॉर्क बढ़ जाएगा। थीटा 90, टॉर्क इज मैक्सिमम, यू नो दिस इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90। तो वुडन प्लैंक के ऊपर यहाँ जैसे हैंडल होता है फ्री एज के पास, यहाँ होगा तो ये आर इस हैंडल का ज़्यादा होगा, तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी दरवाजे को क्लोज या ओपन करने के लिए। अगर आपका हैंडल यहाँ जैसे होगा तो आर छोटा होगा, तो ये जो फोर्स लगाएंगे ये ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ लगाते हैं 50 न्यूटन फोर्स, ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ जैसे हैंडल लगा होता तो ये आर छोटा हो गया तो टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा, दरवाज़ा उतना नहीं घूमेगा। 50 न्यूटन फोर्स या 50 डाइन फोर्स जब यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ लगाएंगे तो कम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नाउ इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट handle is fitted near the free edge of a door so that थोड़ी सी फोर्स लगा के ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सके। Now work done in rotational motion, suppose force F changes position of a particle from P to Q। ये पार्टिकल P से Q चला गया, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, O से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द पेज, और दिस इज पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल घूम रहा है। सो ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज 1/4 ऑफ सर्कल। तो फोर्स अप्लाई करी और पार्टिकल P से Q चला गया, P पे इसके कोऑर्डिनेट थे x y और
इसका पोजीशन वेक्टर r था और ये एंगल थीटा बना रहा। जब ये पार्टिकल P से Q गया तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, पहले था x कोऑर्डिनेट इतना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो इट वाज x। अब जब पार्टिकल यहाँ चला जाएगा तो x कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा। अब कितना रहेगा, ये पहले अगर मान लिया इट वाज OA था और अब कितना रह गया OB। सो दिस इज डिक्रीज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट गोज फ्रॉम P to Q। हाइट इसकी पहले इतनी थी x एक्सिस से और जब यहाँ चला गया तो हाइट बढ़ गई, कितनी बड़ी, डेल्टा बाई। ये पहले इसका बाई कोऑर्डिनेट इतना था, ये इट इज़ बाई, और जब यहाँ पहुँच गया तो ये हो गया हमारा बाई प्लस डेल्टा बाई। सो दिस इज़, ये इतनी इंक्रीज इन बाई कोऑर्डिनेट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। P से Q गया, इसको आर्क ले लो या आर्क नहीं लेना है, इसको स्ट्रेट लाइन ले लो। सो इफ़ P एंड Q पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो चाहे इसको आप आर्क ले लो या इसको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। नाउ वी नो थीटा इज इक्वल टू L बाई R। सो हेयर रेडियस ऑफ सर्कल इज R। ये इसका मैग्नीट्यूड भी R होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी R होगा। सो डेल्टा थीटा है एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज एंगल, और लेंथ ऑफ आर्क इज डेल्टा R इन मैग्नीट्यूड एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R। फ्रॉम हियर डेल्टा R निकल जाएगा R डेल्टा थीटा। इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करें हम, इसमें दिस इज योर बेस है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, बिकॉज एंगल हमेशा बेस और परपेंडिकुलर के, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में आता है। दिस इज बेस, डेल्टा बाई इज बेस, डेल्टा आर इज हाइपोटेन्यूज, and this is perpendicular. In this triangle, delta x means perpendicular upon hypotenuse is sin theta। माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं because there is decrease in x coordinate when particle moves from P to Q। ये है हमारा नया कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे इसका नया कोऑर्डिनेट x जो है। फ्रॉम हेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये डेल्टा आर इधर चला गया, ये आ गया। नो डेल्टा आर इज इक्वल टू दिस, ये है हमारा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की वैल्यू ये है आर डेल्टा थीटा। साइन थीटा इस ट्राइंगल से इट इज एक्स अपॉन आर। फ्रॉम ओ ए पी ट्राइंगल इट इज इट इज बाई अपॉन आर। सो ये साइन थीटा की वैल्यू, ये आर और ये आर कट गया, सो डेल्टा एक्स निकल गया हमारा। सिमिलरली इसी इक्वेशन में डेल्टा बाई अपॉन, इसी इक्वेशन में डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और यहाँ डेल्टा आर इधर ले आइए, ये आ गया। डेल्टा आर की वैल्यू डालो और कॉस थीटा की, डेल्टा आर की वैल्यू ये हो गई हमारी यहाँ से, और इस ट्राइंगल में ओ पी ए में कॉस थीटा इज बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज आर और आर कट गए, ये आ गया। नाउ देन वर्क डन बाय द फोर्स इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, डेल्टा आर इक्वल टू दिस। डॉट प्रोडक्ट लीजिए, यू नो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 और बाकी सारे 0, तो ये आ जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स की ये रही, डेल्टा वाई की वैल्यू हमने पीछे ये निकाली हुई है। डेल्टा थीटा इज कॉमन, डेल्टा थीटा इज कॉमन, सो ये आ गया। दिस इज कॉल्ड टॉर्क, दिस इज टॉर्क। ये जेड कंपोनेंट है हमारा टॉर्क का, अगर आपको पीछे वाला याद हो।
जब हमने कंपोनेंट इक्वेट किए थे, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ के, तो टाउ जेड इज इक्वल टू एक्स एफ बाई माइनस बाई एफ एक्स। क्योंकि हमारा ये पार्टिकल जब इस पेज पे घूमेगा तो दिस पेज इज एक्स बाई प्लेन, ये यू कैन से ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है बाई एक्सिस, तो ये पेज कहलाएगा हमारा एक्स बाई प्लेन, क्योंकि एक्स और बाई इसको टच कर रही है। और तीसरी वर्टिकल है परपेंडिकुलर टू द पेज, दैट इज जेड एक्सिस, तो टॉर्क की डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होगी। ये दिस इज जेड कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी अलोंग z axis, so you may write it is tau z. So power in rotational motion, we know power, average power is work done upon time. Instantaneous power is derivative of w with respect to time. तो it is delta w is tau, sorry tau delta थीटा ये निकाल रखा है, और इसको हम डेल्टा थीटा और डेल्टा टी को अलग लिख लिया। दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो हमारे डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज डेल्टा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टाउ डी थीटा, दिस इज dw, so dw again d theta by dt is, so this is instantaneous power. Now next is couple. Set of two equal and opposite forces having different lines of actions constitute a couple. जैसे ये हमारी एक रॉड है ए बी, इसके ऊपर एक फोर्स इस किनारे पे तुमने 10 न्यूटन की लगाई, दूसरी फोर्स बी पे लगाई और ये भी 10 न्यूटन की, तो यू हैव टू फोर्सेस, ये एक लग रही है ए पे 10 न्यूटन की, ये लग रही है बी पे, ये भी 10 न्यूटन की, तो दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस। ये इसकी ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन, so they are acting at different point. One force is acting at A point and another is acting at B point. They have equal magnitude but opposite direction. So this pair of two forces constitute couple. Couple means pair. Couple क्या करता है, it can produce rotational motion but cannot produce translational motion. See, अगर आप इसके ऊपर ध्यान से देखें तो दिस एंड ए विल मूव फॉरवर्ड, इस तरफ जाएगा, और एंड बी पीछे, तो ये दिस इज ये बार जो है आपकी ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर। दिस इज ए एंड यहाँ पहुँच गया ए डैश पे, और ये बी एंड पीछे जाएगा बी डैश पे, तो इट विल रोटेट। सिमिलरली इफ बार इज लाइंग हॉरिजॉन्टली, देन ए एंड के ऊपर फोर्स लगी है, नीचे लाएगी इसको, ये ऐसे हो जाएगा। दिस सॉलिड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ बार एंड दिस इज बी डैश, दिस इज द पोजीशन ऑफ बार आफ्टर सम टाइम। तो ये बार, ये किनारा ऊपर गया, ये किनारा नीचे आया, तो इट इज प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन। Clockwise torque is taken negative and anti-clockwise torque will be taken positive. यहाँ पे ये कैसे घूम रहा है, it is rotating clockwise, so this torque is negative, और ये यहाँ पे it is rotating anti-clockwise, so it is positive. Now moment of couple means rotational effect produced by couple. सिंगल फोर्स भी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती है। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन बाय अप्लाइंग पेयर ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, you apply two equal and opposite forces on handlebar of cycle. जब मोड़ आता है तो आप उसके दोनों किनारों को, अगर ये आपकी साइकिल का बार है तो आप इस हाथ से आगे धक्का दोगे, इस हाथ से इसको पीछे खींचोगे। सो यू अप्लाई टू फोर्सेस साइमल्टेनियसली ऑन
हैंडल बार ऑफ अ साइकिल, और ये फिर उसके बाद मुड़ जाएगा। नो मूवमेंट ऑफ कपल, दिस इज अवर रॉड, दीज आर टू फोर्सेस, एक यहाँ लगी एक दूसरी यहाँ लगी, दो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। ये इनकी लाइंस ऑफ एक्शन, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देन ये पिवट है। पिवट मीन्स आप ऐसा कीजिए, टेक अ वुडन स्केल और टेबल पे नाइफ को वर्टिकली रखिए और उसके ऊपर ये लकड़ी का डंडा हॉरिजॉन्टली रख दीजिए। तो दिस इज नाइफ एज, और यू कैन कॉल इट वेज और पिवट। ये अगर यहाँ पे मैं एक धागे से वेट लटका दूँ और एक यहाँ धागा बांध के इसको ऊपर खींचूँ, या इसको धागे से नीचे, इसको धागा बांध के नीचे खींचो, इसको धागा बांध के ऊपर खींचो। सो ये इस पॉइंट से पिवट ओ से ये किनारा नीचे झुक जाएगा अगर ये फोर्स ज़्यादा हो। अगर ये फोर्स ज़्यादा होगी तो बी एंड ऊपर जाएगा। नाउ दिस पॉइंट इज योर पिवट। इसके अबाउट टॉर्क लेना, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ टोटल टॉर्क टाउ 1 प्लस टाउ 2। इस फोर्स ने जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ये क्या करेगी, इस किनारे को नीचे की तरफ झुकाएगी ऐसे, लाइक दिस। बी किनारा ऊपर जाएगा, ए किनारा नीचे, तो ये ऐसे हुआ जी, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो प्लस टाउ 2 इस फोर्स का टॉर्क, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी, लेट इट बी स्मॉल बी इक्वल टू, तो it is F into B. F is common AB, and this AB is the total length of this rod, or you can say this is perpendicular distance between lines of actions. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, these are lines of actions, इनके बीच की perpendicular distance है A plus B. So we can write R perpendicular. Therefore, moment of a couple tau is equal to moment of a couple means rotational motion जो इसने प्रोड्यूस किया या टॉर्क जो प्रोड्यूस किया, दिस इज इक्वल टू इन दोनों में से कोई फोर्स ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मोमेंट ऑफ ए कपल टाउ इज मोमेंट ऑफ ए कपल या टॉर्क ऑफ ए कपल यू कैन कॉल, इज इक्वल टू ईदर ऑफ द फोर्स multiplied by perpendicular distance between lines of actions. A numerical based on couple, a uniform bar of 70 centimeter length and mass 4 kg is placed horizontally on two knife edges pivoted at 10 centimeter from each end of the rod. ये हमारी एक रॉड है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके ये 70 सेंटीमीटर है, इस किनारे से 10 सेंटीमीटर दूर एक नाइफ एज ये है, और इस किनारे से 10 सेंटीमीटर इधर ये एक और नाइफ एज रखा हुआ। तो वी कैन से नाइफ एजेस के बीच में ये जो K1 K2 लेंथ है ये हमारी 50 सेंटीमीटर होगी। सारी लेंथ 70 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इधर छूट गई, 10 सेंटीमीटर इधर छूट गई। तो ये रिएक्शंस R1 R2 मुझे निकालने हैं, और साथ में एक 6 किलो का बेट इस किनारे से 30 सेंटीमीटर दूर मतलब P पॉइंट पे धागे से लटका रखा है। एक हमने थ्रेड बांध दिया यहाँ पे, कितनी दूर, A किनारे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये इसका भार 6 किलो है, तो कितनी फोर्स लगेगी जी नीचे की तरफ, mg 6 इंटू जी की वैल्यू। अब जैसा हमने आपको कल बताया था कि व्हेन यू आर रेजिंग अ वॉल, दीवार जब आप उठाते हो तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी हाइट लेते हो टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे इस रॉड का भार जो है इट इज़ 4 kg, सो हम ये मानेंगे कि ये सारी फोर्स, सारा भार इट इज़ एक्टिंग
at its center of mass. This is center of mass of this rod. ये बिल्कुल बीच में होगा. इट इज़ ए यूनिफॉर्म रॉड. तो ये सारी फोर्स जो अर्थ लगा रही है, जो कि इसका वेट कहलाएगा, इट इज़ सपोज टू एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो हम ये मानेंगे कि सारा 4 किलो का एक हट्टा कट्टा पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है. तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? 4 × g. दिस इज मास ऑफ रॉड, जो कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड हुआ माना जा रहा है एट द सेंटर ऑफ मास. सो दिस इज वेट ऑफ द रॉड. ये हमने एक 6 किलो का वेट लटकाया हुआ है. जब रॉड को आप नाइफ एज के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगी? रॉड इस नाइफ एज को नीचे दबाएगी और नाइफ एज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ उतनी ही फोर्स रॉड पर ऊपर की तरफ लगाएगा. सो इट इज रिएक्शन. बिल्कुल ऐसे ही ये रॉड का ये एंड जो है इस नाइफ एज को दबाव डालेगा, फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, एंड this knife edge will exert equal force in upward direction, let it be R2. So ये रॉड ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी if sum of upward forces equal to sum of downward forces. तो upward की तरफ जो forces लग रही है R1 और R2 है. So R1 plus R2 should be equal to W plus W dash. तब ये रॉड जो है it will remain at rest. W1 is W is 4 into 9.8. W dash is 6 into 9.8. It is 98 Newton. So R1 plus R2 हमारा 98 Newton आ गया. Now for rotational equilibrium क्या होना चाहिए कि sum of anti-clockwise torque should be equal to sum of clockwise torques. या चलो दैट इज अनफ. सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क. या हम ये कहते हैं सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द रॉड शुड बी 0. तो चलिए हम यहाँ इस पॉइंट के रेफरेंस में लेंगे टॉर्क. ये पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, R1 जो है इस रॉड को ऊपर की तरफ यहाँ से K1 को ऊपर की तरफ लेके जाए तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज होगा. इस फोर्स के कारण ये किनारा K1 ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज. सो दिस टॉर्क इज नेगेटिव. सो ये फोर्स R1 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस G से इट इज KG. KG हमारा देखिए ये होगा हमारा, ये 35 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. तो व्हाट इज योर KG? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर हुआ. 20 + 5 25, क्योंकि AG इज़ 35. सारी लेंथ रॉड की 70 है, तो AG इज़ 30 में से ये 10 निकल गया, तो K1G इज़ AG इज़ 35 और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये KG इज़ 25. So R1 गुणा KG, K1G is perpendicular distance of R1 from G. फिर इस फोर्स की बात करें अगर हम, ये K2 पॉइंट को ऊपर की तरफ खींच रही है, तो वी कैन से ये ऐसे होगा. सो ये हुआ हमारा, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. इसको पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क R2 और इसकी G से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इट इज GK2 प्लस ये जो है इसको देखें और इसके ऊपर कंसिडर करें, ये हमारा नाइफ एज है, दिस इज नाइफ एज. तो इसके रिस्पेक्ट में ये P पॉइंट इसको नीचे खींचेगा तो मतलब इट इज़ ये P पॉइंट ऐसे 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 नीचे आएगा. तो ये नीचे आएगा तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. तो ये टॉर्क भी हमारा पॉजिटिव हुआ. इट इज़ W डैश इंटू PG इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और इस फोर्स का टॉर्क इट विल बी 0 बिकॉज इसके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है. दिस इज़ फोर्स और ये यहीं से ही पास करेगी इसकी लाइन ऑफ एक्शन. अगर लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास करती तब तो ये डिस्टेंस होती. तो जो फोर्स G से पास करेगी उसकी टॉर्क 0 होगा. So from here you substitute in this equation, you substitute values. K1G is 25 centimeter,
ये भी 25 सेंटीमीटर है। W1 ये रहा हमारा W डैश, सॉरी 6 इंटू 9.8, PG इज़ 5 सेंटीमीटर। So you calculate this, it will give you R1 minus R2 11.76. You add equation 1 and 2, ये है R1 plus R2 is 98. तो इसमें R1 plus R2 is equal to 98. So you add these two equation, R2 कट जाएगा, 2R1 आ जाएगा और यहाँ से आपका R1 आ गया। ये 2R1 इनको ऐड कर दीजिए आप, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। So R1 is equal to this, put value of R1 in equation number 1, ये R1 की वैल्यू यहाँ डालिए। So R1 हमारा ये रहा 54.88 plus R2 is equal to 98. So it gives you R2. So that's all. Thank you for watching.